सो कंसेप्ट ऑफ डिसीज हमने देखा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कंजेनाइटल डिसीज and the second is acquired disease. Okay, congenital disease, these are the anatomical or physiological abnormalities present from the birth. जन्म से अपने शरीर में कुछ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीज। डिफेक्टिव जीन्स, ये किसके वजह से हो सकता है? जीन्स के डिफेक्शन के वजह से। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स रहते हैं वो नॉर्मल पेयर्स में नहीं रहेंगे, जैसे कि एबनॉर्मल पेयर है, देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है एंड जीन की एबनॉर्मलिटीज़ है एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्लेफ्ट पैलेट, हेयर क्लिफ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ओके, डाउन syndrome, these are all the congenital problems. Congenital, it may be anatomical and these are anatomical or physiological abnormalities. Example, Down syndrome, cleft palate, okay, these are the congenital diseases. Next is acquired diseases. Acquired diseases, they develop after birth and the further of two types, communicable and non-communicable disease. Acquired diseases are, they are developed after birth. Okay, they are developed after birth. In this, again two types, communicable disease the communicable disease, the disease may be caused by viruses, may be caused by bacteria, viruses, worms, and they are spread from one person to another. The communicable disease, this disease may be caused by a bacteria, viruses, worms, and they are spread from one person to another person. Okay, ये जो कम्युनिकेबल की बीमारी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज. एंड द सेकेंड टाइप इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. In this disease remain confined to the person who developed them. ये जो पर्सन में डेवलप हुई है वही पर्सन में रहती है. They do not spread to another. इसका एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिसीज का
मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये है क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेस है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दिस डिसीज remains confined to person who develop them and do not spread to others. Example, hypertension, diabetes. ओके, सो ये बीमारी एक दूसरे से फैलती नहीं है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देन नेक्स्ट टाइप इज, इसमें अलग अलग टाइप्स है, नॉन कम्युनिकेबल में भी अलग टाइप्स है, दैट इज ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिसीज। दैट इज कॉल्ड, दिस डिसीज आर कॉजेज ड्यू टू अ माल फंक्शनिंग ऑफ सम important organs like heart disease, epilepsy, etc. Okay, organic disease, इसमें फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक डिसीज in which one of the body part or one of the organ is failure, okay, such as heart disease. Then second type is deficiency disease. डिफिशियंसी डिसीज मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी है उसके वजह से होने वाली बीमारी। दिस डिसीज आर कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल्स, क्वाशियोकर, बेरी, गॉइटर, एक्सेट्रा। बेरी, एक्सेट्रा। Okay, deficiency diseases. Next is allergies. Allergies, these diseases are caused by the hypersensitivity of the body. एलर्जीज क्यों हो सकते हैं? अपनी शरीर जब ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, कुछ भी चीज़ के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो वो एलर्जीज प्रोड्यूस करता है। जैसे कि किसी किसी को डस्ट की एलर्जी रहती है, किसी किसी को अलग अलग फूड आइटम्स की एलर्जी रहती है, रैशेज आ जाते हैं शरीर के ऊपर। ओके, द डिसीज आर कॉज बाय द hypersensitivity of the body to certain foreign substance that comes in contact with the body. Example, hay fever. Next type is cancer. This is caused by a uncontrolled growth of certain tissues. Uncontrolled growth of some tissues. So these are the classification of the disease. Okay, congenital disease, first classification, first type is congenital disease. These are anatomical and physiological abnormalities. Okay, by birth, anatomical and physiological abnormalities. Example, Down syndrome, cleft palate, etc. Acquired disease is the second type. There are developed after birth. ये birth के बाद develop होने वाला डिसीज है। उसमें टू टाइप्स है, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। द कम्युनिकेबल डिसीज, दिस डिसीज में बी कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स, एक्सेट्रा, एंड दे आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एक्सेट्रा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, दिस डिसीज रिमेन्स कन्फाइंड टू पर्सन who develop them and do not spread to others. ये स्प्रेड नहीं करते
ओके, एग्जाम्पल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। इसमें अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट ऑर्गेनिक डिसीज और डिजेनरेटिव डिसीज नोन एज। इसमें क्या होता है, ऑर्गन फेल्योर होता है, वन ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज फेल्योर। ओके, देन डिफिशियंसी डिसीज, इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट मिनरल्स की डिफिशियंसी होने की वजह से बीमारी हो जाती है, जैसे कि क्वाशियोकर है, बेरीबेरी है, गॉइटर है। देन थर्ड वन इज एलर्जीज। एलर्जीज अपने बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से एलर्जीज प्रोड्यूस हो जाती है अपने शरीर में, जैसे कि है फीवर। देन कैंसर, कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सम टिश्यूज, ओके, इन आवर बॉडी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया गया है डिसीज का, दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाइड किया है, हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल द वर्ल्ड। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज रिवाइज आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, मतलब एवरी 10 ईयर्स के बाद ये इसका चेंज हो जाता है। ओके, सो ये आपके बुक पेज नंबर 7 पे दिया है, वो क्लासिफिकेशन घर में आपको पढ़ना है। दैट इज द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज। The aim of the classification is to understand the disease thoroughly and find the methods to prevent and cure them. ये क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीज पैदा हुआ है उसका थरोली आपको मालूम रहना चाहिए एंड हाउ इट टू बी प्रिवेंटेड। ओके, इसके बारे में पता लगना चाहिए। Thus the rate of the morbidity as well as mortality can be decreased and the level of community health care is rise. जो अपने कम्युनिटी के हेल्थ केयर लेवल है वो बढ़ने के लिए हम लोगों को डिसीज के बारे में पढ़ना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है ये लेसन में। द लेसन का नाम है कंसेप्ट ऑफ डिसीज। व्हाट इज मीन बाय इलनेस पढ़ा हमने। सो इलनेस क्या है, इलनेस इज द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्दी स्टेट एंड द रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। ओके, the definition of illness. Then definition of disease is any deviation from the normal functioning or the state of complete physical and mental well-being. Okay, this is the definition of disease. और इसके बाद देखा concept of disease causation, मतलब कैसे डिसीज प्रोड्यूस होता है। जो ट्रायंगल है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या रहता है, एजेंट रहता है, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो एजेंट अलग अलग एजेंट रह सकते हैं। एजेंट के फेजेस रहते हैं, जैसे कि प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज मतलब जो होस्ट के बॉडी में जाने से पहले वाला जो स्टेज है वो। ओके, एंड पैथोजेनेसिस फेज मतलब जब भी जो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव एजेंट है, वो एंटर करता है होस्ट के बॉडी में, उसके बाद वाला फेज है उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस फेज। दीज आर द टू डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसीज। ओके, देन पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज में 3 फैक्टर्स है, उसमें फर्स्ट है एजेंट। ओके, सो एजेंट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट, दैट इज फिजिकल एजेंट, chemical agent, in chemical endogenous and exogenous agent. Then third one is biological agent, fourth one is mechanical agent, fifth one is social agent, and sixth one is nutrient agent. Okay, तो ये हमने एजेंट के बारे में पढ़ा। देन होस्ट के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई करता है, वो शरीर को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। और होस्ट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। देन सोशल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड मेंटल स्टेटस। एंड द डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज कैरेक्टरिस्टिक सच एज एज एंड सेक्स। एंड लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक सच एज लिविंग स्टेटस, then smoking and alcohol, then exercise, nutrition, etc. Okay, these are the lifestyle factors. then environment में हमने पढ़ा, environment में 2 environmental factors रहते हैं, जैसे कि internal environment है, external environment है।
एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो शरीर के अंदर वाला एनवायरनमेंट, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो एनवायरनमेंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट में दो एनवायरनमेंट हमने पढ़े, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेन थ्री टाइप्स पढ़ गए हैं। उसमें फर्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब what is the example? Water, air, light, housing, then pollution, noise. Okay, these are the physical environmental factors. Then biological environment matlab all the living organisms such as living beings such as bacteria, viruses, insects, rodents, animals and plants. These all are the biological environmental factors. Then psychological environment में हमने customs, religions, beliefs, ओके इतना पढ़ा है, एजुकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, सो ये सब हमने थ्री ट्राइड के बारे में पढ़ा। ओके, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है? देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट है कंजेनाइटल क्लासिफिकेशन, कंजेनाइटल डिजीज, एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड डिसीज। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ जो डिसीज रहता है, दैट इज द एनाटॉमिकल एंड फिजिकल एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी। ओके, मतलब एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स, ओके, एंड क्लेफ्ट पैलेट, इट इज द एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। ये इसको क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिसीजेस, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज में अगेन टू टाइप्स आर देयर, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज इट इज डेवलप आफ्टर द बर्थ। ओके, बर्थ के बाद होने वाले जो डिसीज है दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल मतलब जो स्प्रेड हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होते हैं, ऐसे डिसीज को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, उसमें क्या क्या आता है? वूपिंग कफ, मीजल्स, चिकन पॉक्स। ओके, ये सब डिसीजेस किस में आते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज में। ठीक है, सो देन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये डिसीज डेवलप किस में होता है? वन पर्सन डेवलप द डिसीज बट दे डू नॉट स्प्रेड टू एनीवन। ओके, एक पर्सन में डिसीज पैदा होता है पर वो किसी और को फैलता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें अगेन थ्री टाइप्स है, ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिसीज सच एज हार्ट डिसीज। इसमें जो ऑर्गन फेल्योर हो जाता है शरीर का। ओके, कौन सा भी ऑर्गन फेल हो सकता है, जैसे कि किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक डिसीज। ओके, मतलब एक कौन सा तो पार्ट है बॉडी का वो फेल हो जाना, निकामी हो जाना, फंक्शन नहीं करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक डिसीज। ठीक है, देन डिफिशियंसी डिसीज, कौन से भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी के वजह से होने वाले डिसीज सच एज नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्सिया, बेरी, स्कर्वी, गॉइटर, एनीमिया, ये सब टाइप्स के इसमें आ जाते हैं डिफिशियंसी डिसीज में। देन एलर्जिक डिसीज आर कॉज बाय अ hypersensitivity of the body to contain certain foreign substance that comes in contact with the body। कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस अपने बॉडी से कांटेक्ट होने के बाद जो डिसीज पैदा होता है उसको बोलते हैं एलर्जी। इसमें एग्जाम्पल है हे फीवर। देन कैंसर इज कॉज बाय द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सम बॉडी टिश्यूज इन द बॉडी। ओके, सो ये क्या हो गया? कंसेप्ट ऑफ डिसीज। समझ में आया है आज का टॉपिक? आज के टॉपिक चैप्टर में डिसीज का डेफिनेशन मस्ट है, क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड द एनवायरमेंट, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, ईजी है, सीखने के लिए भी ईजी है। आप इसका रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन रिवाइज दिस टॉपिक्स। ओके, कुछ क्वेरीज रहेंगे, देन ask me these queries, and certain questions are there in below the lesson. Solve these questions। पेज नंबर 10, पेज नंबर 8 में जो क्वेश्चंस है
वो पढ़ो, उसका उसको सॉल्व करो। जो नहीं आएगा वो मुझे इन्फॉर्म करो, बताओ, कॉल करो। ठीक है? थैंक यू।